Good morning, students. In this video, you will learn about your fourth chapter, Sound and Animation. In this video, you will learn about these topics like slide transition, that how in the PowerPoint your slide will transit. Then you will know about the adding an action button, then creating a photo album. So you will know about the how you can create a photo album with the help of PowerPoint. Then after you will know about the importing data from the other application. So it's mean that you can import your data from the like PDF or Excel format. So now let's begin with this video. Now first of all, slide transition. So slide transition are the motion effects that occur when you move from one slide to next during PowerPoint presentation. You can control the speed of each slide and effect, and you can also add a sound. You can apply a different transition to each slide or the same one to all of them. So now I'll show you that how you can add the slide transition in your PowerPoint. So, so this is just like your PowerPoint presentation, and if you want to add slide transition, then you have to click on you just choose the any one slide. ओके सो जैसे आप लोग कोई भी एक स्लाइड को चूज कर रहे हैं, जैसे सपोज मैंने ये सेकंड स्लाइड चूज की. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द animation. Okay, if you have here an transition slide transition option, then you can click on it. So here I'm using the animation, and animation में आप जाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे ये दिखेगा transition to the this slide. Okay, so here you can see the options are available here. Okay, so whenever you your mouse pointer will over on that any one theme, then it will just you can see the preview of that particular slide transition. Okay, and you can choose and see the preview as here also. Okay, so आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बस क्लिक कीजिए एनिमेशन पे. एनिमेशन टैब पे जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पे ट्रांजिशन के इफेक्ट्स दिख जाएंगे. कोई से भी आप चूज कीजिए, आपको स्लाइड में ट्रांजिशन के इफेक्ट्स आपको पता चल जाएंगे. ओके, so from here you can choose the any transition. Okay, and you can add if you want to add the sound. So here is the option is the sound option. Okay, so there will be by default is a no sound, and if you want to apply any sound when you change the slide, then from here you can choose the sound. Okay, so जैसे आप लोग यहाँ पे एरो पे इन पे लेके जाएंगे, वैसे ही आपको पर्टिकुलर साउंड इसका जो भी आपको सुनाई देगा, and you can choose any sound when you click on it. Okay, and if you want to इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ दिस ट्रांजिशन, जैसे देखिए अभी यहाँ पे ये कितना इसी हम लोग इस की ट्रांजिशन को देखते हैं तो देखिए कितना फास्ट हो रहा है. तो इसकी स्पीड को अगर आपको स्लो करना है तो यहाँ पे ये देखिए ट्रांजिशन स्पीड यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए. सो देयर विल बी अ थ्री ऑप्शन, स्लो मीडियम एंड फास्ट. सो अभी फास्ट हो है ये, देन वी जस्ट अप्लाई देन द मीडियम. ओके, तो जैसे ही तो देखिए एज प्रीवियस उससे स्लो हो चुका है, और अगर इससे भी आपको स्लो चाहिए तो ये स्लो आपका ये आ गया. सो डिफरेंस आपको दिख गया होगा. देखिए स्लो में अभी आपका ये प्रीव्यू इस तरीके से ही आ रहा है, एंड फास्ट में अगर आप करेंगे तो देखिए किस तरीके से आ रहा है. ओके, सो द ट्रांजिशन स्पीड will be controlled by these options. Okay, so this is how you can add the transition. Okay, ये है तरीका आपके ट्रांजिशन को ऐड करने का. अब सेम ट्रांजिशन आप अलग अलग स्लाइड पे भी ले सकते हैं, या फिर अलग अलग स्लाइड पे आप अलग अलग ट्रांजिशन भी ले सकते हैं. सो अगर आपको अलग अलग ट्रांजिशन चाहिए तो जस्ट क्लिक कीजिए दूसरी स्लाइड पे, और यहाँ पे कुछ और आपको स्लाइड का ट्रांजिशन लेना है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन add the slide transition. Now adding action button. So you can insert any shape, image or text and use it to perform an action. When you click on it or over the mouse on it, these are called as action button. You can use them to jump to the any slide or any other program.
ओके, सो बेसिकली एक्शन बटन है क्या? एक्शन बटन ये है कि आप कोई भी शेप और टेक्स्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं आपकी स्लाइड पे, और उसको एक पर्टिकुलर आप एक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको शेप और कोई भी इंसर्ट करना पड़ेगा। फिर इंसर्ट करने के बाद में आप उसमें एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक दैट हाउ वी कैन ऐड एक्शन बटन ऑन इट। तो एक्शन बटन ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले जस्ट सपोज फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारा, और इसमें हम लोग एक्शन बटन ऐड करने के लिए, जैसे सपोज करो मैं कोई इंसर्ट कर देता हूँ कोई भी शेप। तो जैसे ही मैंने शेप इंसर्ट किया, ये देखिए सपोज ये मैंने शेप यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है? ये सिलेक्टेड है। इस सिलेक्टेड एक्शन के बाद में आपको क्या करना है? आपको क्लिक करना है एक्शन पर। ठीक है, तो आपको ये एक्शन कहाँ मिलेगा? आपको ये एक्शन मिलेगा इंसर्ट में जाइए, और इंसर्ट में जाके आपको यहाँ पे ये एक्शन लिंक्स, हाइपरलिंक्स इन एक्शन में आपको यहाँ पे एक्शन बटन मिल जाएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट एक्शन बटन। यहाँ पे आप लोगों को एक्शन बटन मिल गया। अब ये एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अगर आपको हाइपरलिंक ऐड करना है। ठीक है, कोई प्रोग्राम अगर रन करना है तो प्रोग्राम को ब्राउज कर लीजिए। ठीक है, ये बाकी सारे ऑप्शंस इस तरीके से ही हैं। ठीक है, बट अगर सपोज करो कि आपको फर्स्ट स्लाइड से लास्ट स्लाइड पे जाना है, तो आपको यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दीज स्लाइड्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो नेक्स्ट पे ऑटोमेटिकली, वैसे तो नेक्स्ट पे जाएगा ही। अगर इससे प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस पे। तो अगर आपको थर्ड स्लाइड है और थर्ड स्लाइड पे से आपको वापस सेकंड पे जाना है, तो आप बाय डिफॉल्ट नहीं जा पाओगे, तो वहाँ पे आपको एक्शन बटन ऐड करना पड़ेगा। बट अगर मुझे लास्ट स्लाइड पे जाना है, तो लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा लास्ट स्लाइड पे। तो लास्ट स्लाइड पे मैंने क्लिक कर दिया। देन ओके बटन प्रेस करूंगा। ओके, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये स्लाइड। ओके, सो इस स्लाइड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सबकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं? लास्ट वाली स्लाइड या सेकंड स्लाइड जो भी आपको चूज करना है वो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो मैंने थैंक यू मतलब कि मेरी लास्ट स्लाइड थी, तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिख गया। ये आपको चूज करना है। जस्ट सपोज करो मैंने ये चूज किया और ओके बटन प्रेस किया। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका प्रेजेंटेशन करूंगा, ठीक है, यहाँ गए। अब जैसे ही मैं इसका प्रेजेंटेशन करता हूँ, ठीक है, तो देखिए आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस जो आइकन है इस पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी लास्ट स्लाइड आ गई। ठीक है, बट अगर मुझे ये इसके प्रीवियस वाली स्लाइड पूरी चलानी थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ जाना है। ठीक है, वापस प्रेजेंटेशन पे गया, और आप इसके अलावा और कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए, तो आपकी जो बाय डिफॉल्ट जो सीक्वेंस था वो आपको बाय डिफॉल्ट चलने वाला है। ओके, बट जैसे ही हम लोग इस पर्टिकुलर आइकन या फिर कोई इमेज समझ लो या फिर कोई टेक्स्ट समझ लो, ठीक है, उस पे लेके आओगे जिस पे आपने एक्शन परफॉर्म कर रखा है, वहां पे ये कर्सर जो है एरो से चेंज होकर आपका इस हैंड उसमें कर्सर में चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ you can insert an action button. Okay, ये so adding an action button हमने समझ लिया। Now next part is creating an photo album. So you can use your vacation or birthday photos to easily create a presentation album in PowerPoint and show it to your friend or family member. So ये ऑप्शन है कि आप लोग क्या कर सकते हैं? आपकी जितनी भी फोटोज हैं उन सब का एक एल्बम आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन जैसे आप लोग स्लाइड, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये एक एक स्लाइड अपेयर हो रही है ना, बाय माय एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप आपकी फोटोज का भी एल्बम आप ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ यू कैन क्रिएट एन एल्बम? सो नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। Okay, to create a album, we just need to click on the insert tab, and यहाँ पे आपको illustration में आपको photos album दिख जाएगा। ठीक है,
सो जैसे आप लोग फोटोज एल्बम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा न्यू और ये एडिट फोटोज एल्बम, तो हमको न्यू बनाना है तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। देन यू कैन सेलेक्ट योर फाइल फ्रॉम हियर। ओके, सो यहाँ पे आपने क्लिक किया न्यू डिस्क और यहाँ से आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी फोटोज है आपको वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सपोज करो ये मैंने फोटोज हैं मेरी और इनको सबको मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट का मैंने ऑप्शन बता रखा है आपको कि अगर आपको रेगुलर सारे सेलेक्ट करने हैं तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हो आप। ठीक है, और आपको रैंडम फोटो सेलेक्ट करने हैं देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट फोटो एंड प्रेस द कंट्रोल बटन, और उसी के साथ में विदाउट रिलीजिंग कंट्रोल बटन आपको चूज करनी है अलग अलग फाइल। ठीक है, अब लास्ट में जब आप लास्ट फोटो जब चूज कर लोगे आपकी, तब आपको कंट्रोल बटन को रिलीज करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। तो जैसे आप लोग इंसर्ट बटन के पे क्लिक करोगे ये सारी फोटोज की डिटेल यहाँ पे आ गई। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। तो जैसे आपने क्रिएट बटन पे क्लिक किया वैसे ही एक नई फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी, और जनरेट होने के बाद में ये फोटोज एल्बम बाय डिफॉल्ट आपका टाइटल आ गया। ठीक है, और इसके बाद में आप इसका स्लाइड शो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे जाइए स्लाइड शो, और स्लाइड शो के बाद में यहाँ पे बिगनिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये वन बाय वन हर फोटोज को देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। ठीक है, तो ये सारे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज आप लोग आपकी जो भी फोटोज है वो आपको आप लोग वहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। सो दिस इज हाउ you can adding sorry this is how you can creating an photo album with the help of Microsoft PowerPoint. Now importing the data from the other application. So the PowerPoint will give you an option to import the data from the other application like PDF or Excel sheet. So आप लोग आपकी PDF फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सेल शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है ये सब कुछ। जस्ट सपोज इफ आई वांट टू ऐड, जो स्लाइड पे क्लिक किया, ठीक है ये मेरी नई स्लाइड है। सपोज करो इस स्लाइड पे मुझे एक्शन सॉरी कोई भी जो डेटा है मुझे इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, सो हाउ वी कैन इंपोर्ट। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है आपके इंसर्ट टैब में। बाय डिफॉल्ट आप होम टैब में होंगे। ठीक है, आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द दिस टेक्स्ट ऑप्शन इन ऑब्जेक्ट। ओके, सो जैसे ही आपको ये टेक्स्ट ग्रुप दिखेगा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे एक विंडो आपको सामने ओपन हो जाएगा। फ्रॉम दिस लिस्ट यू कैन चूज एनीथिंग। ओके, सो जस्ट सपोज करो कि मुझे यहाँ पे अगर चाहिए, अगर मुझे कोई न्यू क्रिएट करना है तो मैं न्यू क्रिएट कर सकता हूँ, और मुझे कोई पुरानी फाइल मुझे यहाँ से लेनी है तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, और ब्राउज कर सकते हैं हम हमारी पुरानी फाइल्स को। तो ब्राउज पे जैसे ही क्लिक किया एक विंडो ओपन हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स आपको किसी भी आपको ड्राइव के अंदर, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आपका ये दिस पीसी आ जाएगा। ठीक है, दिस पीसी के बाद में आपको यहाँ से जो भी आपके ड्राइव के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी एक्सेल सीट है, ठीक है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे ये क्लास 12 का फोल्डर है और मैंने ये एक HTML PDF है उसको ओके करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो आती है चीज, दो कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिंक। ओके, सो ये लिंक और पे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके दो ऑप्शन है वो हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे। ओके, सो there the two option like embedding or linking. Okay, so embedding mean that the object is inserted as a copy of the original document. Okay, so when you didn't click on the लिंक, ओके, सो एम्बेडेड तब वहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करते हो तो वो एक कॉपी आती है उसकी। ओके, सो यू कैन एडिट इट बट द चेंज विल नॉट बी सीन इन द ओरिजिनल सोर्स फाइल। ओके, तो जब भी सपोज करो कि आप कुछ एडिट करते हैं तो वो जो एडिट होगा वो आपके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे होगा, ना कि उस ओरिजिनल फाइल पे जहाँ से आपने उसको इंपोर्ट किया है। एंड इफ यू सेलेक्ट द लिंक checkbox, then the object have inserted as a link to get the original file. And when you double click on the
on it, then the original file will open. And if any changes are made in the original file, there will be the reflect in your presentation. Linking mean that when an object is linked, information in the presentation will be updated if the source file is modified. ठीक है, तो पता चला आपको क्या होता है कि जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो अगर सपोज करो कि वो जो सोर्स फाइल है मेरी, इट में भी पीडीएफ फाइल और इट में भी एक्सेल फाइल, तो अगर उस सोर्स फाइल में कुछ भी एडिट हुआ है तो वो ऑटोमेटिक मेरे को रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, मतलब कि अगर वहाँ पे कुछ एडिट हुआ है, सपोज करो कि मैंने इसको क्लोज कर दिया और मैंने उस पर्टिकुलर फाइल जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है उसमें एडिट करके बाद में वापस इसको चलाता हूँ, तो यहाँ पे वो अपडेटेड दिखाएगा। ठीक है, बस यही फर्क है इस लिंक पे क्लिक करने का और नहीं। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने लिंक कर रखा है तो देखिए, द इंसर्ट कंटेंट ऑफ द फाइल एज एन ऑब्जेक्ट into your presentation so that you can active it using application that created it. And when we clicked on link, then the insert a picture of the file of content in your presentation, and the picture will be shot to the file so that the change will be reflected by in your presentation. ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक क्रिएट हो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको लिंक को हटा रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने जो पीडीएफ इंसर्ट की थी उसका वो फर्स्ट पेज यहाँ पे ये आ गया। ओके, so this is how we can import the data in PowerPoint also. Okay, so ये है तरीका आपका। कोई भी आप चाहे तो एक्सेल फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो पीडीएफ इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। So this is we have completed our this session. That in this session we have just learn about these topic like slide transition, adding an action button, कैसे action button को add करते हैं, creating photo album कैसे create करते हैं, and import data कैसे करते हैं हम लोग other application से in the PowerPoint. So I hope you are very well known about these four topics. So if you have any doubt and any query, then just write your query in the comment section and you can message me. So till the next class, stay happy and stay safe. Thank you.